हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री एनसीईआरटी सीबीएसई नोमैथिकल एम्पायर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 11वीं इतिहास का जो है अध्ययन अवार साम्राज्य, और ये एनसीईआरटी पे आधारित है, जो कि 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन पे एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमारा यहाँ क्वेश्चन जो हम करेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो ये और भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन को समझिए, देखिए और विचार कीजिए। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we discussion most important chapter here, the three order. That's important chapter for 11th history here. The next question arrive here. Describe the merit and demerit of federal system. You know that's an important question here. Describe the merit and demerit of the federal system. First of all, see here the merit of the federal system. That's an important point. The merit of the federal system here. Federal provide to the security of life and poverty to be a common people. You know that's an important point here. The federalism provided to the security of life and property to be a common people. The federal law established order during the period of disorder and confusion this time here. The federal law established order to during to the period of disorder and confusions here. And federalism exercise on effective check upon to the autocratic rules of kings. That's important. Federalism exercises on the effective check upon to the autocratic rules of the kings here. The next year, the demerit of federal system. You know that the demerit of the federal system here, that's an important question. The federal lord were to away quarrelings with one another to expand their own state. You know that the own states here. As a result of it, the peace and order in the society were often disturbed here. The federal lord were allows is quarrelings with one another to expand their own state. As a result of it, the peace and order in the society were often disturbed here. That's an important point. The federal system provides as obstruction to be growth of political unity. The federal system provides obstruction to be growth of political unity here. And federalism was based on the exploitations of common man. The federal lord used to live the luxury life while the peasant and other common man live in the miserable condition. Now that's important. The federal lord used to live a luxury life while the peasant and other common man live in the miserable condition here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं 3 वर्ग, क्लास 11वीं इतिहास। हमारा आखिरी क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समानता व्यवस्था गुण और दोषों का हमने यहाँ पर एनालाइज करने हैं। समानतावाद का जो है गुण क्या है और दोष क्या है। सबसे पहले हम बात अगर करें समानता व्यवस्था के गुण का, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो समानता व्यवस्था के गुण क्या थे, कहते हैं
समानतावाद ने आम लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्रदान किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण गुण थी इसके, कि समानतावाद ने आम लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्रदान किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। सामंती प्रभुओं ने अव्यवस्था और जो है भ्रम की अवधि के दौरान व्यवस्था स्थापित भी किया। सामंती जो है प्रभुओं ने जो व्यवस्था और अव्यवस्था और भ्रम की अवधि के दौरान व्यवस्था स्थापित किया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। समानतावाद ने राजाओं के निरंकुश शासन पर प्रभावी नियंत्रण भी रखा। समानतावाद ने राजाओं के निरंकुश शासन पर प्रभावी नियंत्रण रखा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात अगर हम नज़र दौड़ाएं समानतावाद के अव्यवस्था के अवगुण, समानतावाद के अव्यवस्था के क्या गुण थे और क्या अवगुण, तो इसके कारण जो है हम गुणों का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। गुण तो हमने किया, अब अवगुण को भी जान ले तो हमें काफ़ी रहेगा सही। सामंती स्वामी अपनी संपत्ति का विस्तार करने के लिए हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि ये अवगुणों के अंतर्गत है कि आपस में हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। इसके परिणाम स्वरूप समाज में शांति व्यवस्था प्राय भंग हो जाती थी। कहते हैं लड़ाई झगड़ा से हमेशा ही जो है लोगों को नुकसान होती है। ये बात कभी लोग समझेंगे नहीं, ना आज समझे, ना कल समझेंगे, ना भविष्य में समझने वाले हैं। और इसके कारण समाज में शांति व्यवस्था जो भंग होगी तो होती ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोग समझदार नहीं हैं, लोग मूर्ख हैं। कहते हैं जो बातें विचारों से हो सकती है, बातों से हो सकती है, उसके लिए इतना भयंकर भयंकर हथियारों का यूज़ करना कभी भी मानवता को कभी भी प्रचालक नहीं है। और मेरा विश्वास है कि भविष्य में इनको कोई भी याद नहीं रखेगा, हमेशा ये दुख दर्द वाली बातें ही रहेगी। कहते हैं युद्ध से आम जनता को तकलीफ़ होती है, बड़े लोगों को कुछ भी नहीं होती है। बड़े लोग तो निश्चिंत से इस देश से उस देश ट्रैवल कर जाते हैं, रह जाते हैं आम गरीब बच्चे लोग जो सिर्फ रोते हैं, जीवन उनके जीते हैं। लेकिन क्या युद्ध को रोका नहीं जा सकता? रोका क्यों नहीं जा सकता? कहते हैं अगर हम की भावना रहेगा तो जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। और मेरा विश्वास है इतिहास में जो व्यक्ति इनके बारे में लिखेगा वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा। ये इतिहास नहीं बना रहे हैं, काला इतिहास बना रहे हैं, क्योंकि युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो कहता हूँ युद्ध की बातें ही हमें इतिहास में नहीं रखना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति समझ दे और बोले कि उनका तो इतिहास में नाम है। अरे किस बात के नाम रख रहे हो इतिहास में? हमेशा जो इतिहास में जब आपका नाम रहेगा तो उन व्यक्तियों का नाम नहीं होगा जो रो रहे हैं, जिन्होंने अपने को खो दिया, जिनकी आंसू आपको देखा नहीं जा रहा है। क्यों इतिहास बनाने के फिराक में लगे हुए हो? कोई भी आपको इतिहास में याद नहीं करेगा, ये मेरा विश्वास है। कहते समानता व्यवस्था राजनीतिक एकता को विकास में बाधक साबित हुई। अब जर्नल सी बात है, युद्ध लड़ाई होती रहेगी, इसमें अराजकता फैलेगी और इससे जो है राजनीतिक एकता के विकास में बाधक साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समानतावाद आम आदमियों के शोषण पर आधारित था। बात यही बात आ गई शोषण पे। कहते हैं कभी भी बड़े लोगों का शोषण नहीं होता, हमेशा आम आदमियों का ही शोषण होता है। समानतावाद आम आदमियों के शोषण पर आधारित था। समानता विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। जो समानतावाद के विचारधारक थे वो विलासितापूर्वक जीवन जीते थे। कहते हैं आम गरीबों को लूट के जो है अपने तिजोरियां भरते थे। तो इसमें जो है समानतावाद हमेशा विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, जबकि किसान और अन्य आम आदमी दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन करता था। कहते हैं 2 वक्त की इनको रोटी भी इकट्ठा नहीं हो पाता था। तो ये जहाँ पर अधिक गुण है, गुणों की संख्या बहुत ही कम है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से रखता है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन की सिलसिला चल रहा था यहाँ पर ठप हो जाता है। ठीक है, अगला हम चैप्टर पे फिर से मिलेंगे, फिर से हम आगे देखेंगे कि हमारा अगला चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन रहेगा। कुछ क्वेश्चन को उठाएंगे, तो आप बने रहे त्रिपाण सिटी सेंटर के साथ। और जितना हो सके शेयर करने की भावना आपके मन में बरकरार रहना चाहिए। जितना हो सके शेयर कीजिएगा, तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। क्योंकि शेयर करने से ये होता है दूसरे बच्चों तक वीडियो पहुंच जाती है आसानी से। क्योंकि यूट्यूब में अगर कोई रिसर्च करता है तो जर्नल सी बात है, जो पहले से वीडियो उपलब्ध है वही वीडियो सबसे पहले आते हैं, त्रिपाण सिटी सेंटर के नहीं आते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जर्नल सी बात है दूसरे बच्चों तक शेयर करने की भावना बरकरार रहना चाहिए आपके मन में। क्योंकि आप ही एक माध्यम हो जिसको मैं कह सकता हूँ, समझ सकता हूँ। क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता, सिर्फ आपको जानता हूं, जो आप वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो। क्योंकि आपको समझ में आएगा तो दूसरे बच्चों को भी समझ में आएगा। तो आपसे थोड़ा सा ही कार्य कह रहा हूं कि सिर्फ
यूट्यूब को जो है शेयर से लिंक कीजिए कॉपी और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए। जिनको देखना होगा देखिएंगे, जिनको नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे। आपने अपना कार्य किया, त्रिपाण सेंटर ने अपना कार्य किया। कहते हैं हम दोनों अपने कार्य से अग्रसर हैं, इसलिए हम जग कल्याण के रास्तों पर अग्रसर हैं। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार जो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो जितना हो सके शेयर करने के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल पाएगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।